ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، شہر اولیاء بنے گا روشنیوں کا شہر۔ کمشنر ملتان جاوید اختر نے میٹروپولیٹن کارپوریشن اور پی ایچ اے کو ٹاسک سونپ دیا۔ پی ایچ اے کو شہر کی تزئین و آرائش کا حکم، اسٹریٹ لائٹس، چوکوں کی تزئین و آرائش کا کام کا آغاز کر دیا گیا۔ شہر میں فلائی اوورز، اہم مقامات پر خوبصورت لائٹس نصب کر دی گئی ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں ملتان سے، شہر اولیاء بنے گا روشنیوں کا شہر۔ کمشنر ملتان جاوید اختر نے میٹروپولیٹن کارپوریشن اور پی ایچ اے کو ٹاسک سونپ دیا۔ پی ایچ اے کو شہر کی تزئین و آرائش کا حکم، اسٹریٹ لائٹس، چوکوں کی تزئین و آرائش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی وسیم شہزاد نے۔ جی وسیم، بتائیے گا، شہر اولیاء بنے گا روشنیوں کا شہر۔ شہر اولیاء بنے گا روشنیوں کا شہر۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے شہر اولیاء کے حسن کو نکھارنے کے لیے رات کے وقت جو لائٹس کا کام ہے وہ سونپ دیا ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ساتھ ساتھ پی ایچ اے کو بھی، اور ان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ شہر کی جو تاریک لائٹیں ہیں اس کو جو ہے وہ پھر سے اجالا کیا جائے تاکہ شہر اولیاء جو ہے وہ مزید خوبصورت تر دکھ سکے، جس کی وجہ سے جو کلسٹر لائٹس ہیں وہ بھی یہاں پر لگائی جا رہی ہیں۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ گھنٹہ گھر جو ہے شہر اولیاء کا دل کا منظر ہے، جو کہ اس وقت نہایت خوبصورت قسم کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر جو لائٹس لگائی گئی ہے وہ بھی رات کے وقت نہایت دلکش جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں، اور شہری بھی اس حوالے سے بہت زیادہ خوش ہیں، اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ملتان کا جو حسن ہے وہ اس وقت مزید جو ہے وہ نکھر گیا ہے، اور شہری اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں، کیونکہ ملتان رات کے وقت جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب جاتا تھا، لیکن اب ملتان کی روشنیاں پھر سے بحال ہوں گی۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہوں گے جن سے بات کریں گے۔ اب پہلے ملتان کیسا تھا؟ رات ہوتی تھی، اندھیرا ہو جاتا تھا، اب جگمگا رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ جگمگا رہا ہے، لائٹیں بھی لگ رہی ہیں اور رنگ برنگی لائٹیں ہیں، ہر قسم کی لائٹیں ہیں، رونق کی رونق نظر آ رہی ہے۔ پہلے راتیں کیسی گزرتی تھی؟ اس روڈ کی کیا صورتحال تھی اور اب کیا صورتحال؟ ابھی اندھیرا نظر آتا تھا اور لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اب لائٹیں وغیرہ بھی رونق کی رونق نظر آ رہی ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ شہریوں کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ شہر اولیاء کی جو تاریکی تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس وقت جو شہر اولیاء کی روشنائیاں ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے، جو دیکھنے میں نہایت دل فریب منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ جی وسیم، آپ نے بتایا کہ جاوید اختر کمشنر کی جانب سے ایسا کہا گیا کہ پی ایچ اے شہر کے اہم چوکوں کی تزئین و آرائش بارے جنگی بنیادوں پر کام کرے، تو یہ بتائے گا یہ کام کب تک مکمل کر لیا جائے گا اور اس کا پراپر آغاز کب سے ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اس کا پراپر آغاز تو آج سے ہی ہوا، لیکن یہ ٹاسک جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 دن کا دیا گیا ہے کہ اس دوران جو شہر اولیاء کی تمام شاہراہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پل وغیرہ ہیں ان کو خوبصورت تر جو ہے وہ دکھایا جا سکے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو اس شہر کا 360 ویو دکھائے گا کہ کتنا خوبصورت قسم کا منظر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، چاہے دربار حضرت شاہ رکن عالم کی بات ہو یا دمدمے کی بات ہو، شہر اولیاء کے دل گھنٹہ گھر کی بات ہو یا شہر کے اہم فلائی اوور کی اہم شاہراہوں کی، تمام ہی اس وقت دل فریب منظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خوب بھا رہے ہیں، اور شہری بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے باہر بھی نکلے ہیں اس دلکش منظر سے لطف حاصل کرنے کے لیے۔ دربار حضرت شاہ شمس تبریز ہو یا دربار حضرت شاہ رکن عالم، تمام پر جو خوبصورت کلسٹر لائٹس جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں، جو دیکھنے میں نہایت دل فریب قسم کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ شہریوں کا اس حوالے سے شہر اولیاء بنے گا روشنیوں کا شہر۔ وسیم شہزاد آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے اچھی خبر۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فعال۔ سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب کا دفتر نئی ڈی ایچ کیو عمارت میں قائم کرنے کی تیاریاں مکمل۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پہلا نوٹیفیکیشن جاری۔ سیکریٹری آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ شیر شاہ روڈ پر قائم۔ کہ عوام کے لیے بڑی خوشخبری، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا دفتر ملتان میں قائم کر دیا گیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا دفتر شیر شاہ روڈ پر قائم کیا گیا ہے۔ سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب کی جانب سے پہلا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جنوبی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سرکاری نمبر 06192000906 ہے۔ سیکریٹری ہیلتھ محمد اجمل بھٹی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق جنوبی پنجاب کے عوام کو دہلیز پر سہولیات فراہم کرنا ان کا مقصد ہے۔ جنوبی پنجاب سے
सेक्रेटेरिएट के हेल्थ डिपार्टमेंट के दफ्तर को फाल बनाया जा रहा है। अब जनूबी पंजाब के लोगों को लाहौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बताएं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का हेल्थ डिपार्टमेंट फाल मुख्तलिफ आसामियों पर तैनातियों का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर अताउर रहमान सेक्शन ऑफिसर टेक्निकल साउथ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट तैनात, सीईओ हेल्थ मुल्तान डॉक्टर अरशद मलिक को डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ टेक्निकल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ टेक्निकल जनूबी पंजाब के साथ साथ सीईओ हेल्थ की जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे डेंगू के हवाले से। लोधरा में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गीलेवाल में 15 साला मुजम्मिल और किरोड़ पक्का के अब्दुल गनी में डेंगू वायरस की तस्दीक। हेल्थ टीमें मुख्तलिफ मकामात पर सर्विलेंस में मसरूफ। डिप्टी डीएचओ मंसूरुल हक रेहान ने सर्विस पंप पर टायर शॉप और कबाड़ खानों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा असद खान चांडिया का सखी सरवर का दौरा, टायर्स और कबाड़ खाने की दुकानों का मुआयना किया। तो आपको बता रहे हैं, लोधरा में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गीलेवाल में 15 साला मुजम्मिल और किरोड़ पक्का के अब्दुल गनी में डेंगू वायरस की तस्दीक। हेल्थ टीमें मुख्तलिफ मकामात पर सर्विलेंस में मसरूफ। डिप्टी डीएचओ मंसूरुल हक रेहान ने सर्विस पंप और टायर शॉप और कबाड़ खानों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा असद खान चांडिया का सखी सरवर का दौरा, टायर्स और कबाड़ की दुकानों का मुआयना किया। जनूबी पंजाब भर में पोलियो मुहिम का आगाज आज से शुरू होगा। लोधरा में सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सीओ हेल्थ डॉक्टर सजाद अख्तर ने मुहिम बारे ब्रीफिंग भी दी। एमएस डॉक्टर मोहम्मद नबील सलीम, डीएचओ डॉक्टर वसीम इकबाल और राशिद सत्तार भी मौजूद थे। उन्होंने इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और रिकवरी वार्ड का इफ्तिताह किया और एमएस को सहूलियात मजीद बेहतर करने की हिदायत की। सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब का कहना था कि पोलियो के 3,50,000 5 साल से कम उम्र बच्चों का टारगेट है। टारगेट को मुकम्मल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ टीम की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। एमएस को डीएचक्यू अस्पताल के प्लॉट्स का मुकम्मल सफाई कराने और अगले दौरे पर मुकम्मल अस्पताल की ब्रीफिंग बारे भी हुक्म दिया गया। आपको बताएं, अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी के अलावा तमाम जमातें शामिल हुई। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर राना शाहिदुल हसन ने लीगी कारकुनों के हमरा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का वीडियो लिंक खिताब सुना। राना शाहिदुल हसन का कहना था कि लीगी कारकुन हुकूमत मुखालिफ कॉल के इंतजार में हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया। लीगी कारकुनों ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का खिताब सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन के डेरे पर सुना। इस दौरान लीगी कारकुन पुरजोश रहे। राना शाहिदुल हसन का कहना था कि लीगी क़यादत ने नवाज शरीफ के खिताब को अवामी तर्जमानी करार दे दिया। कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हालात की तर्जमानी की है। जो मुल्क की सूरत हाल है और इस वक्त जो है अवाम और पाकिस्तान की जरूरत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है वो सब ने देखा है। और मुल्क जो है इस वक्त बेड़ा गर्क हो चुका है, उनकी जरूरत इस मुल्क को है। लीगी कारकुनों का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ आवाज देंगे तो कौम तैयार है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार हैं। तन मन धन से हम मियां साहब की एक काल पर और अपनी मकामी क़यादत की एक काल पर इंशाअल्लाह ताला पूरा जोर शोर से इकट्ठे होंगे। इस मौके पर कारकुनों ने पार्टी की क़यादत के हक में खूब नारेबाजी की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ भी की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। ओपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी मुल्तान के कारकुनान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार दे दिया। कहते हैं एपीसी आइंदा के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। बाद में अपोजिशन अरकान ने एक बड़ी बैठक लगाई तो मुल्तान के जियाले भी पुरजोश हो गए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुनान पीपी 213 के सदर तारिक महमूद खोखर की रिहायशगाह पर जमा हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब सुना। तारिक महमूद खोखर का कहना था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कामयाब है, जिसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ का खिताब कौम की तर्जमानी करता है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में हमारे चेयरमैन साहब की ज़ेर सदारत हो रही है और हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह वहाँ पर जो भी फैसले होंगे
उन पे तमाम पार्टीज मुतफिक होकर लाएअमल इख्तियार करेंगे। कारकुनों का मजीद कहना था कि आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से हुकूमत पर दबाव पड़ेगा और हालात बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। पार्टी लाती है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वर्कर और हम लोग सब मिलके बिलावल भुट्टो की एक आवाज पे इस्लामाबाद कहेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां कहेंगे हम पहुंचने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारे लगाए और पार्टी परचम उठाकर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन करार हैदर के साथ। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। 50 रुपए पाव मिलने वाला अदरक 150 रुपए पाव मिलने लगा। शहरी सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं, जहां छुट्टी के दिन सब्जी की दुकानों पर रश लगा रहता था। सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खरीदार न होने के बराबर हैं। 50 रुपए मिलने वाला अदरक 150 रुपए पाव मिलने लगा। 60 रुपए मिलने वाली बंद गोभी 100 रुपए किलो मिलने लगी। 80 रुपए किलो मिलने वाले करेले 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। शहरी सब्जी महंगी होने से शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी के लिए अब सब्जी लेना भी मुहाल हो गया है। क्या हम भूखे मर जाएं तब हुकूमत हमारा ख्याल करेगी। बहुत चीजें महंगी हो गई हैं, बहुत, यानी कि कस्टमर दुकानों पे नजर नहीं आता है। हर चीज 600 रुपए किलो अदरक है, आलू 80 रुपए किलो है। अब एक गरीब बंदा 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला बेचारा सब्जी पकाएगा या बिजलियों के बिल भरेगा या सुई गैस के बिल भरेगा, वो कैसे अफोर्ड करेगा। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि मौसम तब्दील होने की वजह से सब्जी महंगी और सब्जी की कीमतों में मंडी से इजाफा होता है। कैमरामैन रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। दूसरी जानिब बुर्ज शरीफ और मज़ाफात में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा, चीनी, घी और अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। आए रोज अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशान कर रखा है। आटा, चीनी, घी और अंडों की कीमतें एक बार फिर आसमान से बातें कर रही है। गरीबों की कुव्वत खरीद जवाब दे रही है। आए रोज महंगाई बढ़ने की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। महंगाई बढ़ने की वजह से गरीब तबका अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए परेशानी में मुब्तला है। शहरियों का कहना है कि चीनी 100 रुपए फी किलो, घी 210 रुपए और अंडे 130 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। हुकूमत ने गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने चीनी महंगे दामों फरोख्त करने का नोटिस ले लिया। चीनी की फी किलो कीमत के तायुन बारे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चीनी के एक्स मिल रेट पर फी किलो 2 रुपए मुनाफा हासिल कर सकेगा। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। प्राइस मजिस्ट्रेट्स को दुकानदारों के एक्स मिल रेट के बिल चेक करने की भी हदायत की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74 ग्राम फरोशों को 57,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। आपको बताएं, डेरा गाजी खान में सुखानी कॉलोनी के सामने मेन रोड खस्ताहाली का शिकार। सड़क टूट फूट का शिकार होने के बायस राहगीर परेशान हैं। डेरा गाजी खान में सुखाई कॉलोनी के सामने मेन रोड कई माह से टूट फूट का शिकार है। सड़क खस्ता हाल होने के बायस जहां राहगीर परेशान है, वहीं सड़क से गुजरने वाली भारी गाड़ियां भी मट्टी में फंस जाती हैं। ये सारा मुश्किल अजाब सारा तकड़ा इको बड़ा मन ब्याह क्या मुकाबला कानून देखा। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों का कहना था कि कई माह से सड़क खस्ता हाल है। सड़क खराब होने के बायस मुतअद्दिद हादसा भी रुनमा हो चुके हैं। रोड नहीं बने अजाब है कि दे मेहरबानी करो, ये रोड पर रोजाना टप दे सवारे अब ले दिन कही अरे रोड खराब है क्या करूँ डास, मेहरबानी करो ये रोड बढ़ाओ, तुम्हारी मेहरबानी हो। सड़क से गुजरने वाले शहरियों का कहना था कि इंतजामिया नोटिस ले और सड़क को तामीर किया जाए। सरगोदा के अहम तजारती मराकज उर्दू बाजार में तजावजात की भरमार। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। उर्दू बाजार शहर के एन वस में वाक़ है। यहाँ खरीदारों का बेपनाह रश होता है, लेकिन तजावजात के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खवातीन का तो गुजरना ही महाल है। हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट है कि जो मुख्तलिफ बाजार है सब जहाँ पे लोग एनक्रोच करते हैं, एक्सीड करते हैं, बढ़ते हैं, जी अपनी जगह से वहाँ पे कैमरे लगाएं, वहाँ से दफ्तर में बैठ के उनको विजिलेट कर लें। जी ये इतना बाजार में आकर लोगों को डराना धमकाना ये जो काम है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो दी जगह है लोगों को उनको वहाँ से ना उठाएं ताकि गरीब लोग भी बेरोजगार ना हो। उर्दू बाजार के दुकानदारों ने दुकानों के सामने की जगह भारी किरायों पर दे रखी है, जिससे बाजार की सड़क सुकड़कर 10 फीट तक महदूद हो गई है। इंतजामिया ने मुतादिद बार ऑपरेशन किया, लेकिन तजावजात दोबारा कायम कर दी जाती हैं। कैमरामैन तनवीर हसन के साथ जुनैद खान, रोही, सरगोदा। कोटद्दू वार्ड नंबर 14 डी रिहायशी इलाके बिजली के पोल से महरूम। खंबे कम होने पर बेहंगम तारें हर तरफ नजर आती हैं।
वार्ड नंबर 14 डी खग्गेवाला में बिजली की बेहंगम तारें घरों पर रिहायशियों के लिए दर्दे सर बन गई। खंबे न होने पर बिजली की तारें घरों की दीवारों और बांसों पर बांध दी गई। अहले इलाका का कहना है कि नंगी तारों से एक दफा बच्चे को करंट भी लग चुका है। मुतअद्दिद बार मैपको इंतजामिया को खंबे लगाने की दरखास्त दी। आला हुकाम नोटिस लें ताकि ये मसला हल हो सके। डेरा गाजी खान की सादिकाबाद कॉलोनी में सीवरेज का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदा पानी प्लॉटों के बाहर जमा, इलाका मकीनों की जिंदगी आजाब बन गई। डेरा गाजी खान की सदीकाबाद कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम न होने के बायस गंदा पानी खाली प्लॉटों में जमा होने लगा। बदबू और ताफुन ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सीवरेज का मसला सर जी ये है, जो जितना बंदे अंदर नहीं था देख के लगे हुए पानी वास्ते निकासी वास्ते कोई नहीं हाल पे करना। सारे बलोचन मेंबर जाइए वो भी नहीं या करने मकसद नहीं कोई हल करने बस सारा रास्ता बंद थी वेने। बहुत मजबूरी बनी हुई है लोगों की। यहाँ सीवरेज की ये लाइना भी नहीं बिछी है। यहाँ ये लोग बारिश जो आती है यहाँ घरों में पानी बढ़ जाता है। हुकूमत से ये हम मदद मांगते हैं, हम हमारे यहाँ रास्ता बना दें। शहरियों का कहना है कि बारहा इंतजामिया को दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मकीनों का कहना है कि सदीकाबाद कॉलोनी में सीवरेज का मसला हल किया जाए ताकि वो भी सुख का सांस ले सकें। आपको बताएं, सरगोदा की नवाब कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम तबाह, गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगीं। मकीनों में बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस सरगोदा की नवाब कॉलोनी की गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी। अरसे दराज से खड़े गंदे पानी ने इलाका मकीनों का जीना अजाब बना दिया। बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया। 5-6 महीने पानी है, कोई मस्जिद च बंदा नहीं नमाज पढ़ नहीं आंदा। बेल कर बड़ी आबादगाह भी थे असाई मसीह दिए उत भी कोई नहीं आते, बड़े परेशान हो। वो पुलिस आया बैठा है, वो आगे जा नहीं सकता, पानी में जा भी नहीं सकता। अहले इलाका बुजुर्गों को कंधों पर उठाने पर मजबूर हैं, जबकि नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना है। ये गली जो है इस 5-6 महीने से बंद पड़ी है, तो यहाँ पे कोई नहीं आता सफाई करने के लिए। अगर जाएं तो कहते हैं जब भी आ रहे हैं आप चले जाएं। अगर पैसे ना दिए तो काम नहीं करते, अगर पैसे दे दें तो बस आते हैं, बस वो क्या करते हैं अपना काम करते हैं, यहाँ बैठ के चाय पीते चले जाते हैं। इलाका मकीन का कहना है कि बारहा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। डीजी खान के इलाके ब्लॉक 36 से मुंसलिक रोड्स पर कचरे के ढेर, जगह जगह पड़ी गंदगी से शहरी शदीद परेशान हो गए। इस्लामाबाद की तर्ज पर बना डीजी खान शहर, चौड़ी सड़कें और कुशादा ब्लॉक सिस्टम, मगर अफसोस के इंतजामी नाहली के बायस ये खूबसूरत शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। जगह जगह बिखरी गंदगी से शहरी परेशान है। मकीनों का कहना है कि घरों के बाहर गंद मौजूद है। मुतअद्दिद बार सफाई के लिए शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बहुत गंदी बदबू होते, बैठा नहीं जाता इंसान से। यहाँ मकसद सफाई और रोजाना या एक मुतवातिर एक डब्बा रख दे यहाँ पर, जो उसकी वजह से गंद वगैरह वहीं डालें, वो तो मुनासिब तो नहीं लगता रोड के बीचों बीच ये हो। लिहाजा बल्दिया वालों से ये गुजारिश है एक जगह तयन करें, तयन करने के बाद वही जगह इस कचरे को यहाँ से खत्म करें। शहरियों ने आला हुकाम से शहर में सफाई के बेहतर इंतजाम करने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, मुल्तान में इंतहा पसंदी के खात्मे और अमन के फरोग के लिए अहम बैठक हुई। मेंबरान असम्बली शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। में और अमन के फरोग के लिए अहम बैठक मेंबर सूबाई असम्बली वसीम खान बादौज़ई की रिहाइश गाह पर हुई। अवामी अमन बैठक सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद की गई। तकरीब में मेंबरान असम्बली कसीर तादाद में शिरकत की। मेंबर सूबाई असम्बली वसीम खान बादौज़ई ने अमन बैठक के अगराज़ व मकासद बताए। ये महफिल पैगाम पाकिस्तान को आम करने के लिए, उसके तहत आगाही देने के लिए और उसके लिए जो कोशिशें सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे उर्फ़ आम में SSDO कहा जाता है, उसकी जो कोशिशें हैं उनको उजागर करना और लोगों तक उस पैगाम को पहुंचाना। अवामी अमन बैठक में सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, सिटी सदर PTI अदनान डोगर, ADCR तैयब खान, MPA मियां तारिक अब्दुल्ला, MPA वासिफ मजहर्रा, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस, MPA सलीम लाबर और मशीर वजीर आला पंजाब हाजी जावेद अख्तर अंसारी समेत दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका ने माशरे में अमन को फरोग देने के अज़्म का इआदा किया। मजहब में भी एक खास डायरेक्शन है, हमारे मुआशरे की भी एक खास डायरेक्शन है और किसी मुल्क और मुआशरे की बेहतरी के जो असूल हैं वो इसी तंजीम के जो मैनिफेस्टो है उसका हिस्सा है।
अवामी अमन बैठक में शहरियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर अवामी नुमाइंदों को यादगारी शील्ड्स भी दी गई। कैमरामैन जाहिद जमाल और साथी रिपोर्टर इब्राहिम खान के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के सदर शमसुर रहमान सवाती ने कहा कि मुल्क में 7.5 करोड़ मजदूर हैं। 1.5 करोड़ मजदूरों का कारखानों और दीगर जगहों पर काम करते हैं। 58 लाख मजदूरों को हुकूमत सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर की मद में ख्याल रखती है। बाकी मजदूरों का अल्लाह ही हाफिज है। नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के सदर शमसुर रहमान सवाती ने बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मजदूरों का ख्याल कौन करेगा। 73 सालों से जागीरदारी निजाम ने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। मजदूरों को चाहिए कि वो सूदी निजाम के खिलाफ उठ खड़े हों, किसी जागीरदार को वोट ना दें। उन्होंने कहा कि मुल्क में निजाम मुस्तफा को लाने वालों का साथ दें, भाईचारे से आगे बढ़ें और मुत्तहिद रहकर अपना हक हासिल करें। शमसुर रहमान सवाती ने मजीद कहा कि तमाम लेबर यूनियंस को इकट्ठा करके चलना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान के ताजिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और एमडीए के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने चौक, कुम्हारावाला और पीरा गायब रोड पर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। एमडीए और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से नाजायज जुर्मानों के खिलाफ मुल्तान के ताजिर सड़कों पर आ गए। इन्होंने पीरा गायब रोड पर एहतजाज किया, खूब नारेबाजी की। ये एमडीए और खासकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन राना जमशेद यहाँ के एक नाखुदा बने हुए हैं, जो यहाँ हर दुकानदार के पास आते हैं और भत्ता वसूल करने के लिए उन्हें तंग करते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि एमडीए और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला तजावुजात, गैर कानूनी तामीरात और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर नाजायज जुर्माने करता है। हम डीसीओ आला हुकाम से मुतालबा करते हैं, हम राना जमशेद के खिलाफ नोटिस ले, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और एमडीओ के खिलाफ नोटिस ले। इन्होंने हमें बहुत परेशान किया है, हम रोडों पे आने पे मजबूर हो गए हैं। ताजिरों का कहना था कि वो एमडीए अमले को पैसे दे दे कर थक चुके हैं। आला हुकाम हमारी फरियाद सुने और इन लोगों से जान छुड़ाए। एहतजाज में ताजिरों की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। खैरपुर सादात के मुतासरीन की सुनी गई। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने रोही की खबर पर एक्शन ले लिया। सूद खोरों के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत कर दी। खैरपुर सादात के मुतासरा कई खानदानों ने प्रेस क्लब अलीपुर के सामने एहतजाज किया था। राना इमरान सईदी की रिपोर्ट देखिए। की खबर पर एक्शन। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने सूदखोरों के खिलाफ इंक्वायरी की हदायत कर दी। तहसील अलीपुर के नवाई इलाका खैरपुर सादात के रिहायशियों ने मुबैना सूदखोर जावेद के खिलाफ एहतजाज किया था। मुतासरा खानदान कुंदन माई ने बताया कि जावेद शाह से दवाई के लिए 2000 लिए, 16000 अदा कर दिया। सूदखोर मजीद 20000 का तकाजा कर रहा है। मैं 2000 चाहता, 2000 तक 16000 भरी खड़े से, मैं 40,000 ब्याह मंगता खड़े। साकू धमकी भी देने, बड़े जोर की धमकी देने। असा दरखास्त भी दी, साड़ी दरखास्त दी, कहीं का नहीं सुनी। ना साड़ी सुन देन पुलिस वाले, ना सुन देन साड़ी की बे। असा को तंग की खड़े, बहुत सारा बड़ा तंग की खड़े, धमकी देने, शाम सवेरे साकू धमकी देने। खालिद हुसैन ने बताया कि जावेद शाह से फसल के लिए 80,000 रुपए लिए। 80,000 के अलावा 2,10,000 सूद भी अदा किया, मगर सूदखोर ने मजीद 4 लाख का तकाजा कर दिया और मुकदमा दर्ज करा दिए। मैं 80,000 पे जाता, हम जवेद शाह कनो, जवेद शाह सूदखोर वाला। मैं कपा जो घाटा आ गया मेरे को, मैं वाला वो पैसे को देता न तय, मैं कनो पेन मांग कर दे 2,90,000 में को रसायम ते वाला ब्लैक चेक मंगे थे, पैसे जो चाहते हम सिक्योरिटी मंगे तो मैं को चेक देते हैं वाला वो पैसे मैं 2,90,000 रसा दे वाला एक पर्चा करवा देते थे, 4 लाख रुपए ब्याह मंगता ब्याह। मुजाहिरीन के एहतजाज पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने सूदखोर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कैमरा टीम के साथ राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। रहीम यार खान की बस्ती व छानड़ी के मकीनों के लिए खुशखबरी। एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच ने बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं आवाम की मोहब्बतों का कर्ज आवामी खिदमत की सूरत में अदा करेंगे। बिजली के मंसूबे से इलाके के मसाइल हल होंगे। आपके एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच ने रहीम यार खान की नवाई बस्ती विछानड़ी में बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। इफ्तिताह के बाद एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई। एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच का कहना था कि मंसूबे पर 6.5 लाख रुपए लागत आई। उनका मजीद कहना था कि चैम्बर के इलेक्शन में हमारे ग्रुप की जीत में ताजिर बिरादरी की मोहब्बतें शामिल हैं। इलाके में जो जहाँ पर मसाइल हैं वहाँ पे हम पहुँचते हैं। बिजली का जहाँ मसाइल है वहाँ पे बिजली इंशाल्लाह दे रहे हैं, और जहाँ पे कुछ सड़कों का मसला वो सड़कें दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस दौर में हमारी हुकूमत में
जो भी यहाँ के मसाइल हैं, ये चूँकि मेरा अपना इलाका है, सारे यहाँ पे लोग प्यार करते हैं, वोट देते हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला इनके साथ इंसाफ करेगी। चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच का कहना था कि वो मसाइल हल करके अवाम का मियार जिंदगी बुलंद करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोहित रेमियार खान। बहावलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी जावेद इकबाल के दफ्तर में चेंबर के इंतखाबात की जीत की खुशी में खूब मनाई गई खुशी, जिससे चौधरी जावेद इकबाल ने कहा कि मेरी एक साल कारकर्दगी के बायस शानदार कामयाबी मिली है। भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान एग्जीक्यूटिव के इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मिठाइयां तकसीम की गई। मिठाई सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी जावेद इकबाल के दफ्तर में तकसीम की गई। जावेद इकबाल चौधरी ने कहा कि मेरी एक साला कारकर्दगी के बाद शानदार कामयाबी मिली, इसलिए मिठाई तकसीम की जा रही है। यकीनी तौर पर यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछला साल हमारे पास हमने सदारत की और जब आइंदा आने वाले साल में हमारी कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है। इस साल बिजनेस कम्युनिटी ने हमारी कारकर्दगी का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद हमें पिछले साल हमने 6 सीटें जीती थी और इस साल हमने 11 सीटें दी हैं। ये मुंह बोलता सबूत है हमारी कारकर्दगी का, हमारे ताजर बरादरी का, जो हमने उनके लिए खिदमत सर अंजाम दी है, उसका सिला आज उन्होंने हमें इस जीत की खुशी में दिया है। सबसे ज्यादा वोट लेकर मुंतखब होने वाले नए मेंबर एग्जीक्यूटिव मंसूर अहमद ने कहा कि इनकी कामयाबी प्यार मोहब्बत का नतीजा है। मैं अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने लीडर्स का मशकूर हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन हमारे वोटर्स हजरात का जिन्होंने हम पे एतमाद का इजहार किया और हमें वोट दिया, जिसकी वजह से हमें पूरे भावलपुर शहर में इज्जत मिली। तीसरे नंबर पे मैं अपने लीडरान का, जिसमें चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब हैं, मियां बलीगर रहमान साहब हैं और डॉक्टर राणा तारिक साहब हैं, चौधरी जब्बार साहब हैं और हमारे प्रेसिडेंट जो इस वक्त चैम्बर के हैं चौधरी जावेद साहब, मुबशिर भाई, सरफराज नाजिम साहब, इन सब का शुक्रिया। चेयरमैन ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में गुज़श्ता रोज इत्तेहाद ग्रुप ने 12 एग्जीक्यूटिव मेंबरान में से 11 नशिस्तें जीती थी। इसी सिलसिले में सदर चैम्बर के घर खुशियां मनाई गईं। मुल्तान की शाहीन मार्केट के नौमुंतखब ओहदेदारों ने हलफ उठा लिया। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने हलफ लिया। शाहीन मार्केट में इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज में शाहीन मार्केट में ही तकरीब मुनाकिद की गई। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया और मुबारकबाद दी। हमारा ग्रुप इंशाल्लाह वो अनअपोज बन गया है। अनअपोज बनने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि सारी मार्केट जो है वो इकट्ठी थी, हमने उनसे हल्फ लिया है और हल्फ लेने के बाद आप देख रहे हैं कोई इनके मुकाबले में नहीं आया। दूसरा ग्रुप जो था वो भाग गया है। ख्वाजा अताउल्लाह सिद्दीकी सदर, अकरम गौरी जनरल सेक्रेटरी और जीशान सिद्दीकी ग्रुप लीडर मुंतखब हुए। ख्वाजा अताउल्लाह सिद्दीकी ने शाहीन मार्केट के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। ट्रैफिक का बहुत ज्यादा मसला है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक अड्डे सारे यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और बिजली के तार, बेहंगम तार जो हैं, जो कि वापडा वाले बिल्कुल हमारा ख्याल नहीं करते, ये भी हमें परेशानी है। हम आए हैं तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह कि हमारे मसाइल हल किए। 9 मुंतखब ओहदेदारों को ताजिरों की जानिब से मिठाई खिलाई गई और फूल निछावर किए गए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आपको अपडेट करें राजनपुर से, जहां कच्चे में मजारी कौम ने अपनी मदद आप के तहत 3 अफराद को डाकुओं से बाजियाब करवा लिया। बाजियाबी के बाद तीनों अफराद को मजारी गैंग ने सोन म्यानी पुलिस को सौंप दिया है। बाजियाब होने वाले तीनों अफराद ने मजारी कौम का शुक्रिया अदा किया है। जरा के मुताबिक निजी मोबाइल कंपनी के 3 अफराद काम की गर्ज से कार पर वजोझान से कच्चे की तरफ आ रहे थे। दोस्त अली मोटर की करीब मोटरसाइकिल असलहे के लैस एक डाकू ने रोककर उन्हें पकड़ लिया था। आपको बताएं, मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में SKS एकेडमी की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन सैयद फखर अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। से मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में SKS बेसबॉल अकेडमी की इफ्तिताही तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन सैयद फखर अली शाह थे। तकरीब में डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम, साबिक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जमील कामरान, इंटरनेशनल बेसबॉल अंपायर जफर हुसैन वड़ाइच, कोच पाकिस्तान बेसबॉल टीम मुसद्दिक हनीफ थे। सदर पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन का कहना था कि जनूबी पंजाब में बेसबॉल का बहुत टैलेंट मौजूद है, जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि नए
जवानों को मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। ये जो एकेडमी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, इसमें से बच्चे जो ट्रेन होकर आते थे, जो यूथ के होते थे, वो जब कैरी ऑन करते थे, वो कॉलेज में चले जाते थे, यूनिवर्सिटीज में चले जाते थे, और बेसबॉल की जब स्ट्रॉन्ग उनके स्किल्स होते थे, वो पाकिस्तान नेशनल टीम में आ जाते थे। ये एक सिलसिला टूट गया था ये जनूबी पंजाब के अंदर, मुल्तान के अंदर, तो उसको दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए इस जगह पर हम आए हैं, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट बहुत ज्यादा है। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जबील कामरान का कहना था कि मुल्तान शहर ने पहले भी बेसबॉल के बहुत खिलाड़ी दिए हैं। अकेडमी से इस खित्ते में बेसबॉल को फरोग मिलेगा। आप देखें कि एशिया में हमारा 6वां नंबर है रैंकिंग में, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी जो दीगर बड़ी बड़ी गेम्स हैं वो 50 में भी नहीं है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने खसूसी ने बेसबॉल मैच भी खेला। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। डेरा गाजी खान में पाकिस्तान ओलंपिक्स बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की तकरीब, डीजी खान के डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बॉडी का ऐलान कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। गाजी खान में पाकिस्तान ओलंपिक्स बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की तकरीब हुई। तकरीब में साबिक MPA सैयद अब्दुल अलीम शाह, साबिक चेयरमैन शेख नकीब और मिस्टर पाकिस्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इनके ताउन से और यहाँ लोगों के ताउन से हम यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन को, नौजवानों को अच्छी बॉडी बनाने में मुकम्मल इमदाद और सपोर्ट भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर डीजी खान में मिस्टर पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट है वो भी हमने, इन्होंने कहा कि मेज़बानी हम आपको देते हैं पाकिस्तान का, इंशाल्लाह वो भी अगले साल जो है मिस्टर पाकिस्तान डीजी खान में मुनक्किद किया जाएगा। डेरा गाजी खान में सैयद अब्दुल अलीम शाह को फेडरेशन का पैट्रन इन चीफ नामजद किया गया। शेख नकीब को फेडरेशन का चेयरमैन नामजद किया गया। डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट का सदर शहाब इलाही को नामजद किया गया। डिविजनल सेक्रेटरी तैमूर अब्बास, फेडरेशन का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मुबशिर हुसैन पनवार को नामजद किया गया। इंशाल्लाह ताला कोशिश ये करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग के लिए जितना अच्छा हो सके अपने पूरे डिवीजन में इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर इकदाम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जितना सपोर्ट हो सकेगी हमारे से, हम सब से, हम बॉडी बिल्डरों के लिए सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हमारे लड़के पाकिस्तान खेलें, पंजाब खेलें। फेडरेशन के नए अहदेदारों का कहना था कि डीजी खान में बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट किया जाएगा। अगले साल मिस्टर पाकिस्तान चैंपियनशिप की मेजबानी डीजी खान करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज अपनी 32वीं सालगिरह मनाएंगे। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रिजवान हांस के डेरे पर सालगिरह का केक काटा गया। सूरज चांद रहेगा, भुट्टो तेरा नाम रहेगा, नारे भुट्टो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब साबिक यूसी चेयरमैन मलिक रिजवान हांस के डेरे पर मुनक्किद की गई। तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में कसीर तादाद में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान शरीक हुए। साबिक यूसी चेयरमैन रिजवान हांस का कहना था कि बिलावल भुट्टो की सालगिरह हमारे लिए खुशी का मौका है। हमें बहुत ज्यादा खुशी है। बिलावल भुट्टो साहब 32 साल के हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द ही उनको हम नेक्स्ट PM देखेंगे इंशाल्लाह। जनरल सेक्रेटरी राव साजिद का कहना था कि बिलावल भुट्टो हमारे कायद हैं और आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है जो हमारे कैद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे मोहतरमा शहीद भुट्टो के बेटे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आज हमें ये ऐसे खुशी का दिन है जैसे हमारे लिए ईद का दिन हो। तकरीब में जिला जनरल सेक्रेटरी राव साजिद, जिला सदर कामरान अब्दुल्ला मडल, अब्दुल रऊफ लोधी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चौधरी यासीन, साबिक यूसी चेयरमैन रिजवान हांस, राना इकबाल नून, मेंबर पंजाब कौंसल जिया अंसारी और मलिक नसरुल्लाह समेत कसीर तादाद में कारकुनान शरीक हुए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। खानेवाल में SPO तंजीम के ज़रिए तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में इंसानी हुकूक की आगाही की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप हुई। तंजीम के ज़ेरे तमाम जारी 2 रोज़ा को इंसानी हकूक और कवानीन की आगाही दी गई। रीजनल कोऑर्डिनेटर शाह नवाज खान ने कहा कि हमारे दही इलाकों में लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक की कवानीन की आगाही नहीं होती, इस पर काम कर रहे हैं। हमने 9 यूनियन काउंसिल से 18 लोगों को यहाँ दावत दी है। ये लोगों को जाके कैसे बताएंगे कि FIR दर्ज कराने का क्या तरीकाकार है, अगर उन्हें जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा तो उन्होंने कहाँ जाना है। इन लोगों ने यहाँ के 400 से ज़्यादा गाँव में लोगों को ये तरीका बताना है। रेफरल सिस्टम
ہم نے بنا کے دینے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ کہاں جائیں گے، کس ادارے سے رجوع کریں گے۔ معروف قانون دان راو اکرم خرم ایڈوکیٹ نے کہا کہ ملک میں انسانی حقوق کے قوانین کی آگاہی نہ ہونے پر عام آدمی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ قوانین سے آگاہی نہ ہونے پر رسائی حاصل نہیں ہوتی، اس کی آگاہی دینا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن کے لیے قانون بنتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس قانون کے تحت ہمارے کون کون سے جو حقوق ہیں ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں تک ان کے جو بنیادی حقوق ہیں جن سے ان کا روز واسطہ پڑتا ہے، جو روز کے معاملات ہیں، ان میں اگر ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے ان کو بتایا جائے کہ ان کو کون کون سے قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ ایس پی او تنظیم کی جانب سے 2 روزہ تربیتی ورکشاپ سے تربیت حاصل کرنے والے نمائندے اپنی اپنی یونین کونسلز کے لوگوں کو انسانی حقوق کی قوانین کی آگاہی دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی نیوز کھانے وال۔ قمر چائے نے ملتان میں خوبصورت تقریب سجائے۔ نجی میرج کلب میں قرآن دازی کے ذریعے خوش نصیبوں میں انعامات تقسیم، 16 شہریوں کو سونے کے چمچ تقسیم کیے گئے۔ اس رنگا رنگ تقریب کا احوال جانتے ہیں الشبا آصف کی اس رپورٹ میں۔ قمر چائے نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا۔ ملتان کے نجی میرج کلب میں قمر چائے کی جانب سے قرآن دازی کی خوبصورت تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں 16 خوش نصیبوں کو 10 گرام سونے کے چمچ تقسیم کیے گئے۔ سونے کے چمچ ملنے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں یہ لمحہ ان کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ پہلے تو مفت میں جو کال کی یہ آپ کا انعام نکلا ہے تو آج وسیم حیدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے انعام دیا۔ تو اگر آپ نے اپنی قسمت بدلنی ہے تو پہلے چائے بدلے، قمر چائے پیے۔ موبائل پہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ کا نام نکلا ہے، آپ خوشی نسبت ہیں۔ اس کے بعد ملتان میں آج بلایا گیا ہے جو انعام مجھے مل گیا ہے۔ تقریب میں ڈائریکٹر قمر چائے بلال قمر نے اپنے ہاتھوں سے انعامات تقسیم کیے۔ تقریب میں آپریشن مینیجر وسیم حیدر اور سیلز مینیجر محمد صفدر بھی موجود تھے۔ آپریشن مینیجر وسیم حیدر کا کہنا تھا کہ قمر چائے نے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ آج نبھا دیا۔ اس ایونٹ کے اندر قمر چائے نے سونے کے چمچ جیتنے والے جو جنوبی پنجاب سے کے رہنے والے تھے ان کو یہاں بلا کے ان کا سونے کا چمچ ان کو دیا ہے، اور قمر چائے نے جو وعدہ کیا تھا انعامات کا وہ ان کو ڈیلیور کیا ہے۔ انعامات ملنے پر کسے خوشی نہیں ہوتی، اور وہ بھی سونے کے انعامات۔ محمد ارشد، غلام یاسین اور ملک حیدر سمیت دیگر خوش نصیب بھی بے حد خوش نظر آئے۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ اشفا آصف، ملتان۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھیے